Okay, so I had in the last class given you a question where I told you that a ball is dropped from height h and it is a perfect situation. So therefore the ball bounces up to the same height. And I think the direction chosen were this was the negative direction and this was the positive direction. Okay, so what will happen when the ball is dropped? When the ball is dropped, then the ball will come here, ball will come here, ball will come here, and then it will go back, same path. What can I say about the velocity vectors of the ball while it is coming down? So here the velocity is 0. Here the velocity vector of the ball is like this. Here the velocity vector of the ball is downwards and even bigger. And here at the bottom, the velocity vector of the ball must be minus of root magnitude is increasing, yes. So at the bottom, it must be minus of root 2 gh, right? which we have already derived. अगर h height से particle गिरता है तो bottom पे उसकी velocity root 2 gh होती है. Okay. Now the ball is going to go up, and therefore after the bounce the ball will have a velocity v is equal to plus root 2 gh. And then here there will be a velocity, then here there will be a velocity, and then finally the velocity of the ball will become 0. Okay? So we want to draw the acceleration time, velocity time, and displacement time graph for this ball. Very few of you got this right, and I hope that, and very few of you have done lecture 5 for some reason. Please complete lecture 5. सबसे important है, नहीं तो फिर अगला जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो नहीं समझ में आने वाला. So the displacement time graph, should I draw first or should I draw the acceleration time graph first? Well, I must in these cases always, क्यों भाई राधिका क्या नहीं चेक किया मैंने? You must always draw the acceleration time graph first. You must always draw the acceleration time graph first. इसका reason है, the reason is that, I'll tell you the reason in a moment. T A. So the velocity time graph, sorry, acceleration time graph will be a straight line. Okay, will be a straight line parallel to the x-axis. Why is this? Because the acceleration due to gravity remains minus g. Now some of you, while sending the answers, had done, it is constant, yeah. While some of you, while sending the answers, had done this, which is wrong, because for half the journey gravity is negative and for the other half is positive, was the very thing, was the
was the concept that I was trying to show you is wrong. Earth हमेशा नीचे रहता है. ठीक है? तो एक्सेलरेशन इस बॉल का हमेशा नेगेटिव रहेगा. हाँ, तो if you look at the diagram that I have drawn, Diksha, very carefully, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है, it has a gap. It is not just a straight line, it has a gap. Why is there a gap there? Okay, now please follow my logic very carefully. As long as the ball is in air, actually there is no air, but you know what I mean. So as long as the ball is in air, okay, the only influence that it has, the only external object that is applying a force on the ball is the earth. Therefore, the only acceleration that it has is g, and the direction of this acceleration is downwards. Therefore, we will say that the acceleration is minus g. Okay? The moment it touches the floor, now the floor also starts to apply a force on the ball. Therefore, now we have not only the gravitational force acting on the ball, but also the force due to the floor on the ball. And there is no way that I will be able to tell you what is the force on the ball due to the floor. I don't have that kind of information. But what I do know is that this force on the ball due to the floor will be acting on the ball for a very short period of time, because the time duration of the bounce will be very, very small. Okay. Therefore, if you look carefully at my diagram, what I have done is that I have left a gap in the acceleration time diagram, and this gap exists for a very, very short interval of time. And this gap exists because it is during this very short interval of time the ball is interacting with the floor, as well as the gravitational force is acting on it, right? But since I do not know what is the force by the floor on the ball, I will not plot it. I will not give it a figure. I will not put it on the graph. Okay, is this understood? Is this understood? हाँ, एक मिनट. सर लेकिन उसका जो वेलोसिटी होता है वो एकदम अब्रप्टली जीरो से पॉजिटिव उस पे चले जाता है, तो हम उस पे हाइट नहीं दिखा सकते क्या ग्राफ पे? नहीं, सर बिकॉज मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ उसमें मैं सारे वैल्यूज डालना चाहता हूँ. I want to put values in the graph. So if I make the graph like this, इसको ऊपर मैं कर दूं, spike दे दूं, ये क्या value? What is this value? I don't know. So you can choose to put the spike. I will accept it as the correct answer, but I will not put it because I have no idea about what is the value of the acceleration at that time. So this is the acceleration time graph. Okay, please, all those people who are still not sure about the fact that acceleration changes direction. एक मिनट, हाँ बोलो भाई. सर सर इसमें लाइक अगर हाइट दे तो लाइक व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? क्या नहीं समझ में आया खुशी, फिर से बोलो. व्हेन अगर डेल्टा टी टाइम पे अगर हाइट हो एक, सो व्हाट इज रॉन्ग? लाइक
वैल्यू अगर a नॉट रखे because we don't know any of the value here. Oh no, you know all the values I gave you h na h तो given है ना h तो मैंने दिया और g तो कांस्टेंट होता है ना इसके बाद जो भी मैं ग्राफ बनाऊंगा उसमें सब में वैल्यूज रहेगा डाल सकते हो बिल्कुल डाल सकते हो मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं वैल्यूज के साथ रखना चाहता सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी बीच में. हूँ मैं स्पाइक नहीं रखूंगा ग्राफ में क्योंकि I do not know the value of acceleration when the ball bounces when it interacts with the floor. If you want, you can show the spike. कोई problem नहीं. That would also be correct. Sir, I have one more doubt. Like, when the ball touches the ground, so will there हाँ, be zero acceleration? नहीं क्यों zero acceleration क्यों रहेगा? Acceleration zero है इसका मतलब कि velocity समय के साथ change नहीं हो रही है. लेकिन बाउंस के जस्ट पहले क्या वेलोसिटी थी बॉल की बाउंस के जस्ट पहले क्या वेलोसिटी थी बॉल की V. -√2gh Yeah. -√2gh और जस्ट आफ्टर द बाउंस क्या वेलोसिटी है बॉल की Plus root 2gh. दिस इज ह्यूज राइट आई मीन पहले -√2gh थी अभी +√2gh हो गई है बहुत छोटे टाइम में इसका मतलब कि इस बॉल की वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज होती जा रही है तो बट वो तो डायरेक्शन चेंज हुआ है ना इसलिए प्लस माइनस लगा है. अरे तो आपको अगर एक गाड़ी की वेलोसिटी +10 मीटर पर सेकेंड है और आप उसकी वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड करना चाहते हो तो अचानक से तो नहीं हो जाएगा ना -10 से +10 करना है तो -9 फिर -8 फिर -7 फिर -5 एक पॉइंट पे 0 फिर उसके बाद से +1 +2 +3 +4 सडनली थोड़ी ना चेंज हो सकती है वेलोसिटी हाँ सर आपने एक वन डिमेंशनल मोशन में एक ये क्वेश्चन कराया था तो उसमें टर्निंग पॉइंट पे व्हेन एक्सेलरेशन चेंजेस तो जीरो था ना v उसमें. बिल्कुल हाँ फिर एक्सेलरेशन नहीं चेंज हो रहा था हाँ वेलोसिटी चेंज इधर हुआ है यू don't confuse between velocity and acceleration is due to an external force acting on the body okay and velocity is changed due to acceleration तो जब ये बॉल जमीन पे गिर रही है ना तो क्या अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है हाँ लगा रही है क्या ग्राउंड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है हाँ लगा रहा है हमें मालूम नहीं है कितना लगा रहा है बट हमें ये मालूम है कि इस इंटरैक्शन के दौरान ड्यूरिंग दिस इंटरैक्शन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज चेंजिंग फ्रॉम -√2gh to +√2gh this means that in this short duration of time the ball must have all magnitudes, all velocities between -√2gh and +√2gh. Okay? कभी भी velocity 1 मीटर पर सेकेंड से सडनली 2 मीटर्स पर सेकेंड नहीं जा सकती वेलोसिटी का चेंज हमेशा कंटिन्यूअस होता है और ग्रेजुअल होता है इसका मतलब कि अगर हम वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहे हैं तो किसी न किसी मोमेंट इन टाइम पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी 1.1 मीटर पर सेकेंड भी होएगी कभी ना कभी 1.2 भी होएगी 1.21 भी होएगी 1.213 भी होएगी 1.2132 भी होएगी all rational numbers all the numbers between 1 and 2 the magnitude of velocity will be at some moment in time of course depending on the acceleration the duration of time in which this change occurs may be different तो अगर एक गाड़ी जा रही है और उसका एक्सीडेंट हो गया राइट गॉड फॉरबिड तो उसकी वेलोसिटी सडनली चेंज होती है
उसकी वेलोसिटी, अगर वो गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी तो सडनली जीरो हो गई। लेकिन सडनली जीरो अगर मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 100 फिर जीरो। 100 के बाद 99 हुआ होगा, 98 हुआ होगा, 97.5 हुआ होगा, 97.2 हुआ होगा, 97.15 हुआ होगा, 97.00000002 हुआ होगा। तो वेलोसिटी 100 से जीरो सारी वैल्यूज को लेते हुए चेंज कर रही है। वो हमारे लिए, हमारा परसेप्शन, हमारा जो ह्यूमन परसेप्शन है उसके हिसाब से सडनली हो रहा है। तो हमें लगता है कि वेलोसिटी 100 से जीरो खट से हो गई, हुई भी बहुत रैपिडली हुई, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पहले वेलोसिटी 100 थी, अब इसकी वेलोसिटी जीरो है और इसकी वेलोसिटी 100 से सीधा जीरो आ गई। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। And the same thing with direction change. So if the velocity of the particle changes from north to east, okay, अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी पहले नॉर्थ थी फिर अभी ईस्ट हो गई, तो ये चेंज इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी that at time t is equal to 0 the velocity of the particle is north, and at time t is equal to dt the velocity of the particle is east. This is just not possible. If the velocity was initially north and then velocity was finally east, then this velocity must have changed like the hands of a clock, going from 12 to 3, okay, north से east. इसका मतलब कि कभी ना कभी उस वेलोसिटी का एंगल 30 डिग्रीज रहा होगा, 15 डिग्रीज रहा होगा, 10 डिग्रीज रहा होगा, 60 डिग्रीज रहा होगा। वो इतना रैपिड होगा कि हमें पता नहीं चलेगा, या डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल फोर्स वो इतना धीरे होगा कि हमें पता चलेगा। तो अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी -√2gh से +√2gh चेंज हुई, तो इसका मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड -√2gh से +√2gh के बीच में हर नंबर रहा होगा। ये आया समझ में जो मैं बोल रहा हूँ सबको? वेलोसिटी कैनॉट चेंज, वेलोसिटी कैनॉट चेंज सडनली, not possible, impossible. Okay. Okay, sir. हाँ भाई रजत बोलो। सर मतलब इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में तो हमें v का जो -√2gh और +√2gh इसका कुछ क्या काम ही नहीं है ना। क्या क्या? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमें √2gh का कुछ काम ही नहीं है नहीं ना हमारे नहीं पास। नहीं नहीं नहीं, कोई काम नहीं। और फिर ये जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम था सर डेल्टा टी, उसके बाद मतलब जो फ्लोर का फोर्स उस पर एक्ट कर रहा था बॉल पे वो खत्म हो जाता है और वो सोलली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है ना। हाँ, ग्रेविटी हो जाए, हाँ बिल्कुल ओके, सही। yes. थैंक यू सर। हाँ जोहेब बोलो भाई। सर हम लोग ने जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किया था ना, तो हमने वेलोसिटी मैप जोर किया से था। बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। सर हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, जब हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं ना, तो हम वेलोसिटी मैप करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट वेलोसिटी सब समझा। हमने सर एक पहले ग्राफ किया था जिसमें वेलोसिटी का चेंज हो रहा था, मतलब एक कांस्टेंट था, फिर रेस्ट था, फिर कांस्टेंट था एंड नेगेटिव हो गया था। तो एक ट्रेपीजियम सॉर्ट ऑफ थिंग आया था। तो मेरा हाँ, डाउट ये है कि जब वो कांस्टेंट से रेस्ट होता है तो वो मतलब वो भी तो हमें मैप करना पड़ेगा ना, कि अचानक से हम ये नहीं कह सकते कि अभी कांस्टेंट था और अचानक से रेस्ट हो गया, तो वो उसको हम मैप नहीं करते ग्राफ पे। क्यों नहीं करते हैं? तभी तो धीरे धीरे गया था, तभी तो ट्रपीजियम बना। ट्रपीजियम के साइड्स क्या हैं? जो स्लांटेड साइड्स हैं वही तो बता रहे हैं ना कि हमारा जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है। सर बट स्लैंटेड साइड तो कांस्टेंट बता रहे हैं ना। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहा है ना। क्या जो शार्प एजेस आ रहे हैं ना वहां पे, हाँ सर, हाँ सर। क्या? शार्प एजेस नहीं आएंगे। ओके।
तो हम लोग उसको राउंड ऑफ कर दे ऐसा ग्राफ में कि वैसे छोड़ दें अभी के लिए? हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, अभी तो ऐसे ही छोड़ेंगे, अभी तो वैसे ही शार्प एजेस रखेंगे, लेकिन आइडियली शार्प एजेस नहीं आने। ओके, समझा समझा समझा। ओके, थैंक यू सर। Okay, so this is the acceleration time graph. रोसन्ना गैप इसलिए रखा है क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि जब ये फ्लोर के साथ टकराएगा पार्टिकल, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा. We don't know that. Okay, now I want to draw the velocity time graph. Now the thing is, why did I say कि acceleration time graph पहले बनाना चाहिए? The reason is that I have to use that statement. Statement is that the slope of the velocity time graph is equal to acceleration. The slope of the velocity time graph is equal to acceleration. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैं ग्राफ अभी बनाने जा रहा हूँ वेलोसिटी टाइम का, उसका जो स्लोप होना चाहिए, that should be equal to this minus g. That means that the slope of the graph that I am going to draw here must be a negative number and constant. Therefore, I am going to draw a straight line. Now I know that at time t is equal to 0, the velocity is 0. So the graph must start from here. And I also know that as time goes on, the velocity of the velocity of the ball is increasing in the downward direction. Therefore, this tells me that the velocity of the ball is negative as time goes on, and it reaches a maximum value of minus root 2 gh. Therefore, I will draw a graph like this. Slope of the graph is minus g, and this value of velocity is minus root 2 gh. Now, when this minus root 2 gh is reached, then after a very small time dt, the velocity now suddenly becomes plus root 2 gh. So this must be the velocity at time just after the bounce, plus root 2 gh. But the slope of the graph must remain constant. Right? The slope of the graph must remain constant. And the final value of velocity when the ball is back at the topmost point, then this final velocity becomes equal to 0. Velocity becomes equal to 0. मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि time 0 लग रहा है, but velocity is 0. So this will be the velocity time graph of the particle. Let me just redraw the axis of time. Now to draw the displacement time graph of this. So why am I drawing t such a high this thing? The reason is because the downward direction is taken as negative. एक मिनट भाई, हाँ तरुण बोलो. सर वहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना मैग्नीट्यूड में, एक्सेलरेशन है तो हाँ
वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना मैग्नीट्यूड में, अगर एक्सेलरेशन हो रहा है उस पे तो। कहाँ इंक्रीज कर रही है? ये जो आपने अभी स्लोप बनाया है -√2gh तक का, उसमें मैग्नीट्यूड में इंक्रीज कर रही है ना वेलोसिटी, हाँ, तो फिर उधर कर्व क्यों नहीं आया है? क्योंकि ये जो ग्राफ यहाँ पे बनाया है, ये वाला, इसका स्लोप क्या होना चाहिए? स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होना चाहिए। हाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। क्या है एक्सेलरेशन समय के साथ? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इसका स्लोप ठीक है सर, समझ गया। है ना, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन। हाँ हाँ, तो रुक जाना, पूरा देखना क्या बोल रहा हूँ मैं, पूरा ग्राफ देखो ना। एक मिनट। हाँ भाई आर्यन बोलो। सर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जहाँ पर टी टाइम पे जब वेलोसिटी इज -√2gh, हाँ, सर फिर जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है वो मतलब एट द सेम इंस्टेंट वेलोसिटी √2gh हो गई? नहीं देखो ना, मैंने छोटा सा गैप बनाया है ना, दो डॉटेड लाइन, दो वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाई है ना मैंने। ओके सर, दैट इज द डेल्टा टी। जो लेफ्ट वाली, हाँ, जो लेफ्ट वाली डॉटेड वर्टिकल लाइन है उसके एंड पे -√2gh है, और जो राइट वाली डॉटेड लाइन है उसके वहां से +√2gh। ओके, थैंक यू सर। So we want to draw the displacement. Join कर सकते हैं, बिल्कुल join कर सकते हैं, हाँ. If you want, you can join these 2 points, no problem. Yeah. If you want, you can join these 2 points like this. उसमें कोई इशू नहीं, बट मैं इसलिए नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, रियल वर्ल्ड के रूल्स के साथ थोड़ी ना कर सकते। मैं इसलिए नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन होएगा या नहीं होएगा। But since they are so close that dt time is so small, it really does not matter. So you can draw a line, or you cannot draw a line, whatever. Both will be correct. Now we want to draw the displacement time graph, and the key of drawing displacement time graph is always remembering the definition of displacement. So when the ball is here, this is the displacement. When the ball is here, this is the displacement. When the ball is here, this is the displacement. And same when the ball is going up. When the ball is going up, the displacement does not become positive because the displacement is always a vector drawn from the initial position to the final position. Therefore, as the ball comes down and as the ball goes up, in both cases, the displacement will be negative because the initial position of the ball will always be the highest position of the ball. Since the displacement is always negative, the displacement time graph, just like the acceleration time graph, will exist below the axis of time. Now, the thing is that the slope of this guy, the slope of the displacement time graph must be equal to this, right? So, अगर slope of displacement time graph ये velocity time graph है, इसका मतलब कि मेरे को अब एक कर्व बनाना पड़ेगा, ठीक है? कैसा कर्व बनाना पड़ेगा? स्लोप वुड नॉट बी कांस्टेंट, नहीं। हाँ बोलो जोहेब भाई। मुझे वो पॉइंट नहीं समझा, टी का इतना ऊपर होने का पॉइंट। टी का इतना ऊपर होने का,
वो टी एक्सिस जो है, टाइम का जो एक्सिस है वो इतना ऊपर है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा नेगेटिव रहेगा ना, सुन तो जो मैं बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कभी पॉजिटिव नहीं होएगा। तो मेरा पूरा ग्राफ टी एक्सिस के नीचे ही रहने वाला है ना। सर बट लेकिन जब वो नीचे से मतलब बाउंस करके ऊपर आ रहा है तो इट इज मूविंग हाँ टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन ना, हाँ, तो तभी फिर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मतलब ओरिजिनल पोजीशन से कितना वो ट्रैवल करता है, मतलब हाँ, क्या ओरिजिनल पोजीशन जो है डिस उसका उधर से वो कितना ट्रैवल करता है। ये तो मैंने आई डोंट थिंक मैंने कभी वर्ड यूज किया है ऐसा। मैंने ना कभी ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर यूज की किया है वर्ड। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। सो हाँ, अब इनिशियल पोजीशन बॉल का कहाँ है? इनिशियल पोजीशन बॉल का एच पे, और फाइनल पोजीशन बॉल का कहाँ रहेगा? एच पे ही रहेगा, तो वो नीचे जाके ऊपर आ रहा है क्योंकि तो बीच इनिशियल और फाइनल में सेम है। कहाँ पे रहेगा? हाँ, बीच में कहाँ रहेगा? बीच में नीचे रहेगा। कभी बॉल ऊपर जा रही है अपने इनिशियल पोजीशन से? नहीं तो जो तू वेक्टर बनाएगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, वो किधर पॉइंट करेगा, डाउन और अप? सर बट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो सेम है ना। फाइनल पोजीशन वेरिएबल है, फाइनल पोजीशन कोई ओके 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 ओके। फिक्स नहीं है। You position is fixed, small, it goes down, it comes back up. You can choose any time to define the final position. हम्म, And if 10 people define 10 different times for final position, and these 10 people draw a vector from the initial to the final position, where will all the vectors be pointing? बताओ भाई। हाँ सर इनिशियल से फाइनल बनाएंगे तो सब वेक्टर तो नीचे ही पॉइंट करेगा, बस लाइक वेक्टर का जो लेंथ है वो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, बट पॉइंट तो अल्टीमेटली नीचे ही करेगा। ओके तो इसीलिए हम लोग ओके ओके समझ सकते हैं। Okay, so the displacement time graph will be such that the slope of the curve, हाँ क्या डाउट है उत्कर्ष? बोलो भाई उत्कर्ष, क्या डाउट है? So the slope of the graph must start from zero, right? Because the velocity is zero. तो यहाँ पे tangent should be a straight line. And finally, the slope of the graph is a negative value. अच्छा रुक जा अभी मैं, let me draw the graph, then I'll tell you the doubt. Finally, the slope of the graph is negative value, okay? Negative minus root 2gh. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस टाइम पे आएंगे जहां पे वो हिट कर रहा है बॉटम को, तो यहाँ पे उसका जो स्लोप होना चाहिए ग्राफ का वो ऐसा होना चाहिए, राइट? एंड लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ दिस ग्रीन, चलो नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे स्लोप ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे स्लोप ऐसा होना चाहिए,
और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और हाई वैल्यू होना चाहिए, और ये कर्व है, and at every point the slope is negative, right? So here the graph must start like this and the graph must end like this. So therefore graph must end like this. So therefore ऐसा है. फिर अचानक से स्लोप पॉजिटिव हो गया, अचानक से स्लोप पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब कि यहाँ पे स्लोप अब आगे ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव हो जाना चाहिए, और फाइनली स्लोप जीरो हो गया, राइट? एंड थ्रू आउट द स्लोप रिमेन्स पॉजिटिव. दिस मीन्स दैट द ग्राफ मस्ट बी like this. So this is the displacement time graph of the ball. हाँ, आप रुको एक मिनट, सारे डाउट बता. सर हाँ बताओ. हाँ. वो जो सबसे बॉटम वाले फ्लो पे जो अपने है उसमें जो नीचे आ रहा है और जो ऊपर जा रहा है, तो बीच में थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी ना बीच में. कहाँ पे बीच में? सर जब ऊपर से नीचे कौन आ से रहा ग्राफ है की एट द बात कर वर्टेक्स, रहा है पहले ये तो. डिस्प्लेसमेंट टाइम सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब वो वर्टेक्स. सबसे नीचे है, जब वो सबसे नीचे है तो कितना डिस्प्लेसमेंट? जब वो सबसे नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट उतना कांस्टेंट है, मतलब लाइन एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, लेकिन dx तो dt तो रहेगा ना, dt टाइम बीच में. नहीं रहेगा ना, dt जब वो नीचे रहेगा नहीं रहेगा. dt टाइम तक वो एट द सेम पोजीशन रहेगा ना. सेम पोजीशन रहेगा ना. हाँ सर, तो एक छोटी स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, डायरेक्टली पॉइंट से चालू होकर पॉइंट से नहीं निकलना चाहिए, एक छोटी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए वहां पे. कहाँ पे छोटी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए? एट द वर्टेक्स. अच्छा वो जो डिटेल, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही, सही. यस यस, सही है. हाँ बिल्कुल सही बोल रहा. नहीं, ही इज एब्सोल्युटली राइट. व्हाट ही इज सेइंग इज कि यहाँ पे एक छोटा सा वो होना चाहिए, बट ठीक है. So this is the velocity time, displacement time, and acceleration time graph of the ball, right? हाँ उत्कर्ष, अब बताओ क्या डाउट है तुम्हें भाई? उत्कर्ष हैंड रेज करेगा तो तेरे को अनम्यूट कर दूंगा, फिर बोल दे क्या डाउट है. हेलो सर. हाँ बोलो. सर वो डाउट है कि पहले तो इनिशियल जो हाइट है वो जोर हम से लोग की, बोल, जोर से बोल. सर जो इनिशियल हाइट है वो हमारी एच है, तो सर मतलब आपने एच हाइट को ओरिजिन में ले लिया है क्या? क्या बोल रहा है, मैं तो नहीं समझ. सर जैसे कौन से ग्राफ की बात हो रही है? सर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की बात है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. हाँ, तो वेक्टर बनाएगा तो वेक्टर का डायरेक्शन किधर होएगा? सर कॉल आ रहा है बैकग्राउंड में, बोलूं फिर भी? हाँ, सर सर वापस बोलो ना, मुझे सुनाई नहीं दिया. जो वेक्टर बनाएगा डिस्प्लेसमेंट का, उसमें इनिशियल पॉइंट कहाँ लेगा? इनिशियल पॉइंट सर सर यहाँ पे सर वही मेरे को डाउट है कि
मतलब अरे हाइट इसमें डाउट क्या है भाई, बॉल का इनिशियल पॉइंट क्या लेगा? से जो एच हाइट है हमारी। तो फिर सर लेकिन यहाँ पे एच हाइट आपने ऐसे बनाया नहीं ना, आपने मतलब ओरिजिन लिया है और माइनस एच आपने नीचे लिया है, एच हाइट है ही नहीं आप। अभी कहाँ पे है तू? अभी मतलब मैं सर घर पे हूँ। अभी कहाँ पे है? सर घर पे। जाएगा तो सामान लेने मार्केट जाता है और वापस आता है। हाँ सर। हाँ, अच्छा। कितना कैसे ट्रेवल करेगा तू? मैं। घर से निकलेगा हाँ सर। या स्टार ट्रैक की तरह टेलीपोर्ट होके पहुंच जाएगा? मैं घर ट्रैवल से करूँ। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ सर। हाँ, अच्छा। घर से स्टार्टिंग में। निकलेगा हाँ हाँ सर। तो तेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ से कैसे वेरी करेगा? घर से मार्केट, फिर मार्केट से घर, या मार्केट। घर से ही मार्केट हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा? वेयर नहीं डिड यू सर, स्टार्ट फ्रॉम? दोनों दोनों जगह में। ठीक है, आया ना समझ में? हाँ ठीक है सर, थैंक यू। हाँ भाई शिवेन बताओ। सर अगर हम ये लास्ट वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो ये बस उल्टा हो जाएगा ना? क्या क्या क्या? अगर हम ये लास्ट वाला ग्राफ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, मतलब ग्राउंड से ऑब्जर्वर है आप ग्राउंड। किसी के रिस्पेक्ट में बनाओ भाई। आप अपने घर से मार्केट गए तो मार्केट के रिस्पेक्ट में क्या आप मार्केट से घर गए? नहीं सर। आप तो घर से मार्केट ही आए ना। आप कोई भी देख रहा हो, यू गो फ्रॉम योर होम टू द मार्केट एंड देन बैक अगेन। बट सर मेरा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट माइनस एच हो जाएगा ना अगर मैं ग्राउंड पे हूँ तो? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट माइनस एच हो जाएगा मतलब जब एट द स्टार्ट ऑफ द मोशन t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट एच हो जाएगा ना अगर मैं ग्राउंड पे हूँ तो बॉल का? डिस्प्लेसमेंट होता क्या है भाई? सर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट पे फाइंड। तो आप ये बोल रहे हो कि आपका घर मार्केट से 2 किलोमीटर दूर है, so you go to the market and you come back to your home, then the market वाला guy is going to say कि आप तो अपने घर से चले ही नहीं मेरे रिस्पेक्ट में, तो या मेरे रिस्पेक्ट में आप पहले ही 2 किलोमीटर चल चुके हो। क्या बोलेगा मार्केट वाला बंदा? आप घर पे बैठे हो अपने, मार्केट वाला बंदा बोलेगा मैं ओरिजिन हूँ, तो आप 2 किलोमीटर, you understand what I'm saying to you again? You have to go from your home to the market, which is 2 kilometers away, and then you have to come back to your home. Okay? Yes sir. Once you are back to your home, what is your displacement? So with respect to my home it is 0, but sir with respect to the market initial displacement would have been 2, and then Okay. when I go to the market it will be 0, then when I come back again it will be 2. So when you go to the market wala will say that you have traveled exactly 0 kilometers. Displacement wise. हाँ जी. Displacement wise. So the market wala person will say that your displacement is 0. मतलब आप बिल्कुल चले ही नहीं है, या the difference between your initial position and final position is 0. But sir reference मतलब reference point तो initial वाला वो तो market पे है, तो फिर मेरा displacement 2 ही रहेगा ना अगर मैं करता हूँ? काश मेरे सामने होता तो मैं तेरा गला तो दबा सकता था. What are you saying? I mean, you are just the initial physical location से final physical location पे arrow बनानी होती है. You are at home.
market wala guy is at the market. Where is your physical location? 2 kilometers from the market, guys. And then you travel to the market. What is your physical location? 0 kilometers from the market, guys. You draw an arrow. Anybody draws an arrow. You draw an arrow. Market wala draws an arrow. I draw an arrow sitting at my home. I will draw an arrow from where to where. From market to my home first. Then मेरा origin तो खारगर में है. yes, sir. Sorry. और स्पेस स्टेशन वाले का ISS वाले का origin तो स्पेस स्टेशन पे है. तो स्पेस स्टेशन वाला क्या बोलेगा कि आप मार्केट से आप घर से मार्केट नहीं गए, आपने कुछ स्पेस स्टेशन पहले पहुंच गए थे. जो एरो बनाएगा कोई भी ऑब्जर्वर वो कहां से कहां बनाएगा? From my house to market. So when the ball is falling, the displacement vector that you will draw, irrespective of wherever you are observing it from, or irrespective of wherever you have chosen the origin, the arrow will be drawn from where to where? From the upper part, from the height edge to ground. And height edge to whatever, wherever the ball is. Yes, sir. This arrow will always be down or up? Down. So what do we learn from this? We learn from this the fact that जो भी class 10th में पढ़ाया गया है, you cannot hang on to it. The displacement is a vector which is defined as a vector drawn from the initial position to the final position. It does become confusing, but you have to rise above that confusion. You have to define, you have to write down, or you have to do something according to the watertight definition of that term. So displacement does not care where your origin is. Displacement only cares about the physical initial location and the physical final location of the particle. Yes. हाँ, सही बोल रहा है. हाँ भाई रजत बताओ. सर वो h क्या है, मतलब हाइट है क्या, माइनस हाइट जो आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या है बनाई है? माइनस हाइट? क्या बोल रहा है? मतलब हाइट ऑन द लोअर साइड, नीचे आता हुआ डिस्टेंस डायरेक्शन के हिसाब से. क्या डिस्टेंस, डायरेक्शन, लोअर हाइट सब तो तूने एक साथ बोल दिया. एक एक करके वर्ड यूज कर. वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सर. धीरे धीरे तो बोल. वो h क्या है सर? कहाँ पे h क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में. डिस्प्लेसमेंट है. अच्छा ओके. डिस्प्लेसमेंट है. ओके चलो. हाँ भाई शौनक बोल. सर हम लोग अगर कोई चीज ट्रैवल करती है, जैसे इस केस में जो बॉल ट्रैवल कर रही है वो एच हाइट से नीचे कर रही है फिर वापस ऊपर जा रही है, तो हम लोग जो उसका जो डिस्टेंस है, जो ट्रैवल कर रहा है वो, उसको हम लोग, उसकी जो जर्नी है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके कि एक पॉइंट जो एच जहाँ से उसने ओरिजिनली शुरू किया और एक जो जहाँ पे वो ग्राउंड पे मीट किया, फिर दूसरा उसका जो जर्नी है जो जहाँ पे उसने ग्राउंड से शुरू किया और उसके बाद वो एच हाइट तक गया, तो उसमें तो कॉन्ट्राडिक्टिंग वेक्टर्स आ रहे हैं. एक में ऊपर फेसिंग आ रहे हैं वेक्टर्स और एक में नीचे फेसिंग आ रहे हैं, तो हम लोग वो ग्राफ तो प्लॉट नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग एक जर्नी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें. तो यही तो बता रहा हूँ नहीं करना है मेरे बाप. क्या कर रहा है भाई? तू यहाँ से गया दिल्ली, ठीक है? तू यहाँ से गया दिल्ली, तूने बोला अच्छा ठीक है बॉम्बे से मैं अगर नॉर्थ वेस्ट जाऊंगा तो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा. अब तू पहुंच गया दिल्ली, अब तेरे को वापस आना है. कौन से डायरेक्शन में आएगा वापस? उसके जस्ट उल्टी डायरेक्शन में आऊंगा. हाँ, उसके जस्ट उल्टी डायरेक्शन में आऊंगा. क्यों? नीचे नॉर्थ करके और
फिर उधर वेस्ट करके फिर नॉर्थ वेस्ट में क्यों नहीं चल सकते हैं? अच्छा वो कन्वेंशन, ओके समझ गया ओके समझ समझा गया। ना? तो अब हाँ तू बोल रहा है कि नीचे आया तो नीचे नेगेटिव लेते हैं, ऊपर जा रहा है तो ऊपर नेगेटिव लेते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। एक बार जब हमने पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन डिफाइन कर दिया तो अब उसमें चेंज नहीं करेंगे ना। ओके सर समझ गया। और कौन है भाई? एनीबडी एल्स? हार्दिक, एक मिनट रुक। हाँ बोल। लो सर, डाउट है सर। हाँ आपने बोला कि वो जो कन्वेंशनली है, बट अगर हम इसको मतलब सेम टू सेम ग्राफ को वर्टिकली अपवर्ड्स, लाइक आपने से डाउनवर्ड्स बनाया उसको सेम अपवर्ड्स बनाते तो लाइक कन्वेंशनली नहीं होगा बट करेक्ट तो होगा ना वो ग्राफ? भाई, दिल्ली जो है यहाँ से मेरे हिसाब से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। सही है कि नहीं है? नहीं सर। नहीं, कन्वेंशनली नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं अपने मन से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चूज कर लूँ तब तो होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, तब हो सकता हो जाएगा ना। है। यस। तो अगर हर आदमी कन्वेंशनली ना चूज करे, हर आदमी अपने हिसाब से चूज करे तो मजा आ जाएगा ना फिर तो बातें करने में। एक आदमी बोलेगा दिल्ली साउथ वेस्ट है, दूसरा वो नहीं नहीं नॉर्थ है, वो तो नहीं नहीं साउथ है। सर बट हमको मतलब जो ग्राफ से मेन चीज मतलब दिखानी है वो तो उससे भी हो जाएगी ना मोटिव पूरा, कि लाइक बता रहे हैं कि पहले जी बढ़ रहा, मतलब पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। बिल्कुल नहीं होएगी। वो तो फिर तो जो मैं बोल रहा हूँ उसके इक्विवेलेंट हो गया ना सब कुछ। तो भाई दिल्ली की डायरेक्शन मैंने अपना चूज किया और मैंने बोल दिया कि दिल्ली वेस्ट में है, लेकिन है तो नहीं ना। यस सर। कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए ना। वी मस्ट हैव ए कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू डिस्कस. That is why, if you remember, when I gave the question, I was very particular. And for all those people who sent the solutions, and I wrote no, the major problem was this direction. जब मैं क्वेश्चन दे रहा था तो आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव चूज करना है कि नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव चूज करना है। नेगेटिव। समझ रहा है ना? यस सर, थैंक यू। So would you be correct or not? Well, in a sense, you would absolutely be correct, but uh, I mean, it would be chaotic. It would be wrong because जो हमने कन्वेंशन डायरेक्शन का चूज कर लिया है, if you are doing something opposite to that, then you are conveying a completely different meaning. अगर इसी ग्राफ को मैं ऊपर कर दूंगा, अगर इसको मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, उसको एक्सिस के ऊपर ले जाऊंगा, उसका मतलब ही कुछ और हो गया। उसका मतलब ये हुआ कि भाई पहले ही डिस्प्लेसमेंट प्लस एच था। इसका व्हाट वुड दैट मीन? दैट इज व्हाट यू आर सेइंग ना। यही बोल रहा है ना। इसको ऊपर, इसको ऐसे ऊपर बना दिया, यहाँ पे ऐसे बना दिया, ऐसे में पहले ही डिस्प्लेसमेंट एच था। इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डज दिस मीन? सो according to the convention that I have, according to the, not the convention, according to the directions that we have fixed, any other graph would not convey the same. Any other graph would not convey the same meaning. In any case, Hardik, the answer is the same. हमारा जो कन्वेंशन है, जो हमारा अग्रीमेंट है, वो फॉलो होना चाहिए। ठीक है क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। So the next thing is that I want to talk about the area under xt graph. So the area under the xt graph is equal to the displacement of the point.
Now, this statement, okay, this statement, तेरे को क्या हो गया? रुक. हाँ, sorry, VT graph. हाँ, sorry. नहीं. रुक जाओ. Just have some patience. Area under the VT graph is equal to the displacement. Okay, I'm very, I'm emphasizing the word displacement. So, what do we mean by this? So, if we have the velocity time graph for a particle, and the velocity time graph is supposing something like this. Okay, this is the velocity time graph. Then what do we mean by the area under the graph? Area under the graph का मतलब होएगा ये और ये और ये. So this is the meaning of area under the graph. ये velocity time graph है. This is the meaning of area under the graph. Let me call हाँ बीच वाला है ना, बीच वाला है area under the graph. Let me call this area A1. Let me call this area A2. Let me call this area A3. Then displacement of the particle will be equal to A1 minus A2 plus A3. Please notice what has happened. The area under the VT graph, which is below the axis of time, is taken as negative. Okay, so the area under the graph below the VT, below the time axis is plus A3. Sorry. The area under the graph, the area under the VT graph, which exists below the axis of time, is to be taken as negative if you want to calculate the displacement. However, you can also calculate the distance traveled by taking all the areas as positive. अगर आपने area below the axis of time, नहीं bracket कहीं नहीं है, bracket कहीं नहीं है. If you take the area below the axis of time as negative, you will end up with displacement. And if you take the area below the axis of time as positive, then you will end up with distance. Okay, so let me show you an example. And I think I promised show you this example. So find the distance traveled by a particle in 10 seconds if x is equal to t square minus 5t plus 6. Right? You remember this question? I hope answer भी याद है सब लोग को. The answer was the distance traveled was something like 62.5 meters, right? So now I want to show you the fastest way of doing this.
So I know now, okay, please follow me very, very carefully. I know now that the area under the VT graph is the displacement, but I can also find the distance by finding the area under the graph. All I have to do is I have to take the area below the axis of time as positive and I'll end up with distance. And if I take that area as negative, I'll end up with displacement. So first I differentiate this to find the velocity of the particle and I get v is equal to 2t minus 5. Then I draw the velocity time graph. This is time, this is velocity. I have to draw a straight line. Okay, I have to draw a straight line whose y-intercept is -5. Okay, and the slope of the graph is 2. Slope of the graph is 2. Remember, ये हमने बहुत डिस्कस किया था. Straight line equation y is equal to mx plus c. If you are not convinced, if you are not remembering, all you have to do is put t is equal to 0, find the value of v. So you end up with 0 comma minus 5. And then you have to put the value of v as 0 and find the value of t. So you end up with 2.5 comma 0. And you just have to sort of join these 2 points and you get this straight line. So I want the distance traveled by the particle in 10 seconds, right? So it is my claim then that this area of the triangle plus this area of the triangle should give me the distance traveled, okay? So what is the area of these triangles? Well, to find the area of the lower triangle is easy because I know the base and I know the height. To find the area of the right wala triangle, I know the base, it is 7.5, and I don't think I know this. I don't think I know the height. Right? Well, it's not written here, but I do know the height because all I need to do, yes, all I need to do is put t is equal to 10 here to get the value of v. So when I put t is equal to 10, I get v is equal to 15. So this means that this axis must have a coordinate of 15. Therefore, this distance must be 15. Right? So now I know the base and height of both the right angle triangles. So the area of the 10 minus 2.5, 7.5 ही तो होता है ना? नहीं, 8.5 होता है, मेरे को याद नहीं है. Area is equal to half into 5 into 2.5 plus half into 7.5 into 15. Please calculate this and tell me the value. Please calculate this and tell me the value. आयुष माइनस क्यों कर रहा है मुझे नहीं मालूम है. इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 62.5. Yeah, so we can do it in one step. हाँ, और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, you will get the displacement. Subtract it and tell me the value.
If you subtract it, what will be the value? -50 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है? हाँ 50 आएगा ना, +50 आएगा. And if you remember that when I asked you this question, then many of you answered 50 because you were finding the displacement. You were not finding the distance traveled. Okay, so once again, for area under the graphs, the area which is below the axis of time in the VT graph is taken as negative if you want to find displacement, and this area is taken as positive if you want to find distance. Okay? This is very, very important. VT. तो पोजीशन बता रहा है ना आर्यन, पोजीशन अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, डिस्टेंस अलग चीज है. आया समझ में आर्यन? आप सब लोग के नाम अलग अलग है ना. I can't start mixing them up, right? If I start mixing them up, then weird things will happen. If I start calling you Utkarsh and if I start calling Utkarsh Arpit, लोचा हो जाएगा ना. इसी तरीके से जो हमने choose किया various things, we must stick to those definitions. So you must be absolutely clear about the meaning of position. क्या होता है position? You must be clear about displacement. अभी जो मेरी बहस हुई थी, वो क्यों हो रही थी वो बहस? क्योंकि there was a mismatch between the definition of displacement. Position is something, whereas displacement is independent. अरे प्रसन्ना, इसमें क्या मतलब कैसे confusion आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है भैया. You know, I mean, this is absolutely clear. I don't think there should be any confusion. Axis of time के नीचे जो एरिया है वो नेगेटिव लेना है और ऊपर जो है वो पॉजिटिव लेना है. इसमें कैसे कंफ्यूजन आ रहा है भाई प्रसन्ना? डिस्प्लेसमेंट is equal to A1 minus A2. Distance is equal to A1 plus A2. ठीक है? दो क्लासेस मतलब क्या होता है बे? ये अभी सबको क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट 2.5 कैसे आया क्या? एक मिनट कौन है भाई जिसने नाम नहीं लिखा है? हार्दिक क्या नहीं समझा भाई? हार्दिक क्या नहीं समझा? हार्दिक एक मिनट रुको.
हाँ सर लाइक ये नहीं समझा कि वीटी ग्राफ तो कुछ भी हो सर, मतलब वो तो डिस्प्लेसमेंट ही देगा ना, जो भी एरिया है, तो टोटल एरिया भी डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए ना। अरे मैं तेरे को बता रहा हूँ कि टाइम के अंदर टाइम के नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेगा तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, पॉजिटिव लेगा तो डिस्टेंस मिलेगा। अच्छा लाइक वो बस मतलब बस बताने के लिए, एक्चुअल में वो प्लस ही हो रहा है ना, काइंड ऑफ दोनों एरिया को ऐड कर रहे हैं, बस वो जो नीचे वाला वो नेगेटिव हो रहा है इसलिए सब्ट्रैक्शन लग रहा है, बट वैसे तो वो एडिशन ही है ना काइंड ऑफ एरियाज का। क्या बोल रहा है, वेक्टर है ना, वी आर डीलिंग विद वेक्टर्स राइट। तो वेक्टर यस में जो सर। नेगेटिव साइन होता है वो तो डायरेक्शन होता है ना। तो थंब रूल वीटी ग्राफ का अगर एरिया लेंगे तो टाइम के नीचे का, टाइम एक्सिस के नीचे का जितना एरिया लेंगे वो नेगेटिव ही लेना है, चाहे जो हो जाए। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। एक्सेप्ट इन द वेरी एक्सेप्शनल केस तब उसको पॉजिटिव लेना, नहीं तो नेगेटिव ही जाएगा। हाँ, और किसको डाउट आया? 2.5 यहाँ पे आप v को 0 रखो, देखो कितना आता है। कीप v as 0 and then you see what happens. हाँ, अगर अगर टाइम एक्सिस के नीचे कोई एरिया नहीं है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एब्सोल्युटली राइट, यस। ठीक है, चलो ओके, सो फिनिश लेक्चर 5 and I will start with projectile motion in the next class. एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ बोलो। Sir, after lecture 5, there is an exercise of lecture 1 to 5 tutorial. We also have to do that. Hello, sir. यस यस यस, मोशन डायमेंशन हो गया, अब हम मोशन इन 2 डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। Okay, sir. ओके ओके, ठीक है। नहीं, जिसने भेजा है, आई एम नॉट, आई सेड दैट नॉट ऑल ऑफ यू हैव सेंट दैट इज। पार्ट टेस्ट का सिलेबस मुझे मालूम नहीं है, एक बार दिनेश सर से पूछना ना, दिनेश सर बताएंगे। अभी रिलेटिव वेलोसिटी अभी करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी विल डू। हाँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। चलो बाय 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 बाय। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, लेक्चर 6 करो, मुझसे आगे रहो, 3 लेक्चर आगे रहो।